फेस टू फेस प्रोग्राम देख रहे ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਵਿਤਕਰਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਮੁਨੀਸ਼ ਪੁੰਦੀਰ, ਜੋ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਨੀਸ਼ ਪੁੰਦੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਜੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਯੂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਜਵਾਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ, ਸਮੋਸਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟਸ ਉਹਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੱਢ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਦਿਨੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵੇਰੇ 5, 5:30 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ 9, 9:30 ਤੱਕ ਆ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਸੰਡੇ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮੰਤਵ ਕੀ है, किस तरह की हेल्प सोसाइटी ਨੂੰ करती है? आयुष्मान फाउंडेशन बेसिकली 3 या 4 तरह के लोगों की हेल्प करती है। आयुष्मान फाउंडेशन की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि बच्चे जो कि रिजेक्टेड हैं, बच्चे जो कि समाज का पार्ट ही नहीं बन पा रहे हैं, जिनको एजुकेशन मिल ही नहीं पा रहा है, हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि उनको एजुकेशन दें। कुछ बच्चे स्कूलों में ऐसे भी हैं जिनको एजुकेशन तो मिल जाती है लेकिन घर में वो माहौल नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनको नहीं समझ में आ पाता कि पढ़ाई में वो नहीं ज़्यादा कॉन्स्टेंट चल पाते, लगातार नहीं पढ़ पाते। 4वीं 5वीं करी छोड़ दिया, एक तरीके से चाइल्ड लेबर की बुराइयाँ, फिर बहुत सारी बुराइयाँ जो शुरू हो जाती हैं। दूसरी हम कोशिश करते हैं कि उसमें भी ना जाएं, बच्चों की हेल्प करते हैं। उसके बाद हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, विडो सपोर्ट के लिए बहुत काम करते हैं। बहुत सारी विडोज़ हैं इस समय देश में, लगभग 40 मिलियन के करीब हैं जो कि विडोज़ हैं। हम कोशिश करते हैं कि वो विधवाएं जिनकी या तो इनकम बहुत कम है या कि इनकम है ही नहीं है, तो उनकी हम सपोर्ट करते हैं। एक अजीबोगरीब सर्वे हमने देखने में पता चला है कि एक जो जितने भी स्लम्स एरिया हैं, स्लम्स एरिया के अंदर मैक्सिमम जो विडोज़ हैं वो अपने मतलब जो है पोतों और लड़कियों के बच्चों को पाल रहे हैं। तो उनके यहाँ पे ये सामाजिक बुराई बहुत ज़्यादा है कि शादी होती है लड़की की, 2 या 3 बच्चे होते हैं, उसके बाद वो उनका जो पति है वो उनको या तो चला जाता है या फिर इधर उधर हो जाता है, मिलता नहीं है। तो इस तरह के बाद परिवार जो होता है और भी ज़्यादा व्यथित हो जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ से भी अपराध शुरू होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि उनको सपोर्ट करें। हमने अभी सिलाई केंद्र भी हमने 1-2 जगह खोलने की कोशिश करी है और वो एस्टेब्लिश करने की धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं ताकि वो औरतें जिम्मेदार बन सकें और काम करने के लिए तैयार हो सकें। मनीष जी, जिस तरह ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਵਿਡੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ पैसे की ज़रूरत पैंदी है। तुसी पैसा कित्थों इकट्ठा करते हैं? पैसा इकट्ठा करने के लिए सर संडे को और बाकी समय जहाँ पर जो पब्लिक प्लेसेस में जा जाके हम लोगों से निवेदन करते हैं कि आप यहाँ पे सपोर्ट करें। हम उन्हें बताते हैं कि अगर आप एक महिला को राशन देना चाहते हो तो 1650 रुपये का राशन है 1 महीने में, जो कि कम से कम बनता है एक विधवा के लिए, आप वो सपोर्ट कर सकते हो। तो इस तरह के अच्छे समाज में अच्छे लोग भी हैं जिनको ये सिर्फ ये एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि ये जो पैसा है, ये जो सामान है, हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि पैसा नहीं लेते, हम कहते हैं सामान आप ले लीजिए और उनके घर पर जाके दे
जाइए, साथ चलिए, ज़्यादा बेटर है, ताकि आपको खुद विश्वास आए कि ये चीज़ होती है। क्योंकि समाज में आजकल और तरह के धंधे भी काफ़ी चलते हैं। मनीष जी, जिस ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜਲਦ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅੜਚਨ ਬਣਦੀਆਂ? ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਸਕੇ। ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ है ये लोड़वंद है? सर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने पूछा है। हम लोग कई बार स्लम्स में जाते हैं, कई बार ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे इस प्रकार के परिवार हैं जो इकोनॉमिक वीकर में नज़र आते हैं। वहाँ पे भी कई परिवार ऐसे हैं जो आज भी एलसीडी लगा के बैठे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कोशिश करते हैं पहले उनके प्रधान के थ्रू, फिर उनके घर पे विजिट जाके हम सामान देते हैं, उनके घर पे जाके बात करते हैं कि भैया तुम्हारे घर पे परिवार में कौन कौन है, कौन कौन नहीं है। हाँ, ये जरूर होता है कि हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। अच्छा, दूसरी चीज़ हम एक और अच्छी करते हैं कि हम लोगों से जैसे कपड़े लिए पुराने, हमने पुराने कपड़े बांट दिए, तो हम ऐसे नहीं करते कि गाड़ी खोली और बांट के आ गए। हम कहते हैं कि लिस्ट बना के लाते हैं, उनके बच्चों की उम्र लिखी होती है, उन कपड़ों के ऊपर हम साइज तक लिखते हैं और फिर उसको लिस्ट से मैच करते हैं। मान लीजिए शांति देवी है, उसकी उम्र 55 साल है, उसके पोता है 9 साल का, तो हम 9 साल की ही ड्रेस उसको देते हैं ताकि उसको वो इस्तेमाल कर सके। आमतौर पर ऐसे बांटने के माहौल के अंदर क्या होता है कि सही व्यक्ति को सही चीज़ नहीं मिल पाती। मुनीष जी, ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? अभी तक हम 37 को कर रहे हैं। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੜ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? बच्चों को जो हम सपोर्ट कर पा रहे हैं वो अभी लगभग 27-28 ही हैं ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? सर, बहुत मुश्किल है। अभी तो काफ़ी कुछ ऐसा है कि अपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके ही करना पड़ता है जी। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हो कि समाज के लिए अगर जिम्मेदारी उठाई है तो कई बार अजिहा भी होता है कि महीने बाद कुछ पैसे अपनी पॉकेट 'ਚ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ? लगभग अभी तो लगभग होता है जी। अभी तो लगभग होता है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਕੇਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈਣੀ। ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ जुड़े हुए हैं? जी, मेरे साथ जितने भी लोग हैं वो सभी नौकरी पेशा लोग हैं जी। वो सभी नौकरी पेशा लोग हैं। आपको मैं एक बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ कि हमने बेसिकली ये शुरुआत क्यों की थी जी। सर देखिए, आज की डेट में एक सर्विस क्लास आदमी जो होता है, उस परिवार का शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन उसका ब्रेड अर्नर होता है जी। एक पत्नी के लिए उसका पति ही शाहरुख खान है, ब्रांड एम्बेसडर है, क्योंकि वो महीने की सैलरी लेके आता है। उस बच्चों को जो सपने पूरे चाहिए वो सब हो जाते हैं पूरे, खास तौर पे हाउसवाइफ के लिए जी। सर, अगर इमेजिन कीजिए उस बंदे को कुछ हो जाए, उस व्यक्ति के साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाए या मृत्यु हो जाए, उस परिवार को वाली वारिस बहुत कम रहता है। क्योंकि हमारे देश में अभी भी जो बीमा से प्रभावित होने और लाभ पाने वाले लोग हैं वो मुश्किल से 2 या 3% ही हैं। तो इस वजह से वो परिवार जो सड़क पे आ जाता है। हमारी कोशिश ये है, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आप स्लम्स के लोगों को देखो, वो शायद फिर भी कहीं से एडजस्टमेंट करके या मदद मांग सकने की पोजीशन में है, लेकिन एक पत्नी जिसका पति 40,000 रुपये 30,000 रुपये कमा रहा था, वो इस परिस्थिति में भी नहीं होती कि वो अपने बच्चों के लिए हाथ फैला सके बाजार में जाके। तो इस वजह से हमने ये कोशिश की थी कि समाज में एक ऐसा तबका भी है जो अच्छा कमाता है, लेकिन अगर वो नहीं है घर में तो कुछ भी नहीं है, तो हमने उसकी हेल्प करने के लिए ये किया था। तो सभी सर्विस क्लास लोगों से हमने रिक्वेस्ट करी, काफी लोगों से, और उनको ये बात समझ में भी आई क्योंकि ये सच बात थी। तो हमने ये कोशिश करी है कि आप ये काम कीजिए ताकि समाज में अगर आज मेरा बच्चा है उसको कोई आदमी सपोर्ट क्यों करेगा अगर मैं किसी को कर रहा हूँ। तो हमने एक नया समाज में एक लहर बनाने की कोशिश की है। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ
ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ? सर अभी मैंने आपको बताया ना, विचारधारा के साथ लोग जुड़ते हैं। एक बार तो उनको जाके बताना पड़ता है कि हमारी विचारधारा क्या है। जी, विचारधारा के साथ लोग जुड़ते हैं, लेकिन क्योंकि आज की दुनिया में मैंने जैसा आपने कहा कि पुरानी संस्थाओं हैं और कुछ संस्थाएं गलत भी रही होंगी लाइफ में, तभी लोगों की विचारधारा भी बदली। तो उनकी कोशिश ये होती है कि वो 2 या 3 या 4 मीटिंग में तो वो यही जानने की कोशिश करते हैं कि हम कितने ईमानदार हैं। जब उनको हमारी ईमानदारी पे विश्वास होना शुरू होता है, उसके बाद वहां से मदद शुरू होती है। जी ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ है? जी नहीं, सरकार की तरफ से अभी हमारे को कुछ नहीं है, क्योंकि हमने नया ही शुरू किया है, तो हम ऐसी अभी सरकारी सहायता कोई प्राप्त नहीं कर रहे हैं। ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ? सर जहाँ तक मेरी जानकारी है, ऐसी कई संस्थाएं हैं जो इस प्रकार के काम कर रही हैं, पर जैसा कि आपको पता ही है कि विचारधारा हर एक संस्था की अलग होती है। हमारी विचारधारा अलग है। अब जैसे हमने एक रेड क्रॉस में फंक्शन किया था, हमने वहाँ पे मकर संक्रांति का पर्व मनाया था, लोहड़ी से अगले दिन। तो वहाँ पे जाके लोगों से बातचीत करी, हमने उन बुजुर्गों को समय ज़्यादा दिया बाकायदा कि कुछ हेल्प करने के। हमें जानकारी मिली कि उन बुजुर्गों के पास ना ऑलरेडी 10-10 बिस्किट के पैकेट, ये खाना पीना सब कुछ एक्सेस में था। सिर्फ एक ही चीज़ कम थी और वो थी कोई उनके साथ समय बिताने वाला नहीं था। तो मैंने अपने परिवार के साथ और मेरे साथियों ने अपने परिवार के साथ वहाँ पे जाके रेगुलर बातचीत करनी शुरू की। इससे उन लोगों को मॉरली बहुत सपोर्ट आया। वो आदमी जो दवाई से इतना ज़्यादा ठीक नहीं हो रहे थे, जो सोशली रिजेक्टेड वहाँ पे वृद्ध लोग हैं, उन लोगों को बहुत लाभ मिला। ये वृद्ध लोग की इत्थे कोई संस्था पाल रही है? सरकारी रेड क्रॉस है जी, सेक्टर 15 के अंदर जी। तो वहाँ पे हैं, वहाँ पे टोटल 37 के करीब बुजुर्ग हैं जिनको वहाँ पे रखा गया है और वहीं पे खाते हैं, वहीं पे रहते हैं जी। तो उनकी मंशा ये थी कि कोई आए और उनको समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश करे। अब उदाहरण के तौर पे जैसे कि परसों का एग्जाम्पल है, परसों मेरे बेटे का एनुअल फंक्शन था स्कूल के अंदर, तो मैं वहाँ से एक बुजुर्ग को लेके गया कि आप मेरे साथ चलिए और आप मेरे बेटे का फंक्शन है। तो उस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा इसमें मतलब जो है इमोशनली बहुत ज़्यादा खुश हुए और वो उनको नैतिकता के आधार पे और मानसिक रूप से काफ़ी खुशी मिली कि वो भी एक सामाजिक धारा का पार्ट बने। ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ सोशल काम ਵੱਲ चले गए भी परिवार ਲਈ कोई समा नहीं है? सर एक्चुअली मैं सच्चाई बताना चाहूँगा, मेरे पिता ने मुझे 1-1 रुपया करके पाला। मेरे पिता ने मुझे इतने मेहनत का काम करने के बावजूद 7th क्लास में एक, आप समझ सकते हो कि एक स्कूटर की सवारी तक देने की कोशिश की, जो कि मेरे पिता ने किया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पिता काफ़ी मेहनत करते हैं। 12 साल हो गए, मैंने अपने पिता को एक बात बोली कि आप कुछ नहीं करेंगे, आप घर पे रहेंगे और मैं अब संभालूंगा जिम्मेदारी। तो फिर मैंने सोचा कि कई जगह पे एक अच्छा बेटा नहीं मिलता, कई जगह एक अच्छा पिता नहीं मिलता। ये कम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं समाज के अंदर कि जहाँ पे कुछ अच्छे लोग हैं, अच्छे बच्चे हैं, उनको एक अच्छा माहौल मिले ताकि वो पढ़ सकें, ताकि वो लिख सकें, ताकि वो उनका फ्यूचर ठीक हो सके, ताकि वो एक अच्छे इंसान बन सकें, एक अच्छे नागरिक बन सकें। मुनीष जी, कि जेकर ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਈਆਂ और नवी जनरेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ नहीं है? नई जनरेशन सर आज की दौड़ में मैं देखता हूँ, मतलब है तो काफ़ी हास्य वाली बात है कि नई जनरेशन आजकल मार्क्स तो 95, 96, 99% ला रही है, कट ऑफ भी 98% है, बट नैतिकता के भी कई परिभाषाएं हैं। अपने से बड़े का मान सम्मान करना एक नैतिकता है, लेकिन ये एक जिम्मेदारी समझना कि मेरे माता पिता किस तरह मेहनत करके पैसा कमाते हैं। अच्छा, वो उनसे क्या गलती हुई कि वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए जहाँ तक पहुँचे सकते थे। तो इस कारण मैं समझ सकता हूँ कि ये चीज़ों का कमी है। अभी आपको जान के हैरानगी होगी कि मैंने कई बच्चों के साथ बात की, मैंने कहा 15 अगस्त की छुट्टी क्यों होती है जी? उनको यही नहीं पता कि देश आज़ाद हुआ, कहते हैं छुट्टी होती है। कईयों ने कहा 70% बोलते छुट्टी होती है, 30% ने बोला इंडिपेंडेंस डे होता है, 2 या 3% ने बोला देश आज़ाद हुआ था, 1% ने भी ये नहीं बोला कि देश किससे आज़ाद हुआ था। उनको नहीं पता
जी। हम कल्चर की बात करते हैं, 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ ये भी आज के बच्चों को, कई बच्चों को नहीं पता जी। जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, अक्सर पता होनी चाहिए। अच्छा, इंडिपेंडेंस का मतलब खाली इंडिपेंडेंस बताना नहीं होता है, उनको पता होना चाहिए कि किस तरह से, किस तरीके से आज़ादी मिली, किस तरीके से गुलामी हुई थी, तभी तो वो फ्यूचर बचा पाएंगे। जी मुनीश जी, चर्चा ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ।